محترم سامعین، حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نواحِ عرب کے حکمرانوں کو خطوط مبارک ارسال کیے جن میں ان کو دعوت اسلام دی گئی۔ انہی خطوط میں سے ایک خط شاہ مصر و سکندریہ جریج بن متی قبطی المعروف مقوقس کو بھی لکھا گیا۔ یہ خط حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر شاہ مقوقس کی طرف بھیجا گیا۔ حضرت حاتب کئی دنوں کی مسافت کے بعد جب مصر پہنچے تو آپ نے اہل مصر میں سے ایک شخص کو روکا اور پوچھا، شاہ مقوقس سے کہاں ملاقات ہو سکتی ہے؟ اس شخص نے بڑے تعجب سے حضرت حاتب کو دیکھا اور کہنے لگا، شاہ مقوقس اس وقت اپنے دربار میں ہوگا۔ آپ نے اس کے دربار کا پوچھا اور وہاں پہنچ کر دربار کے باہر کھڑے چوکیدار سے کہا، اپنے بادشاہ کو جا کر بتاؤ کہ مدینہ منورہ سے قاصد آیا ہے۔ چوکیدار نے آپ کو سر سے پاؤں تک بڑے غور سے دیکھا اور دربار میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد واپس لوٹا اور کہنے لگا، بادشاہ مقوقس نے آپ کو طلب کیا ہے۔ حضرت حاتب دربار میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ شاہ مقوقس بڑے رعب و دبدبہ سے تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ ارد گرد کے وزراء اراکین حکومت بڑے ادب سے اپنی اپنی کرسیوں پر براجمان ہیں۔ حضرت حاتب نے کسی کی طرف بھی نگاہ اٹھا کر نہ دیکھا اور بڑی شان و متانت اور پروقار انداز سے شاہ مقوقس کے قریب جا کر گویا ہوئے، اے مقوقس، تم سے پہلے اس ملک پر ایک شخص گزرا ہے جو گمان کرتا ہے اور دعویٰ کرتا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، بس اللہ تعالیٰ نے اس کی پکڑ کی اور نیست و نابود ہو گیا۔ لہٰذا تم اپنے غیر سے عبرت حاصل کرو تاکہ تم سے کوئی دوسرا عبرت نہ لے۔ اس کے بعد آپ نے وہ خط شاہ مقوقس کی طرف بڑھایا جسے مقوقس نے بڑے ادب سے لیا اور اپنے کاتب کو دیتے ہوئے حکم دیا، اسے بلند آواز میں پڑھو تاکہ سب سن لیں۔ کاتب نے خط لیا اور بلند آواز سے پڑھنے لگا۔ خط مبارک کا متن تھا، اما بعد میں تمہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ اسلام لے آؤ، سلامت رہو گے اور اللہ تعالیٰ تجھے دوگنا اجر عطا فرمائے گا۔ اگر تم روح گردانی کرو گے تو سارے قبطیوں کی طرح گمراہی گناہ تیری گردن پر ہوگا۔ اے اہل کتاب، آ جاؤ اور اس کلمہ کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور کسی چیز کو اس کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ایک دوسرے کو اپنا رب نہیں بنائیں گے۔ اور اگر یہ لوگ روح گردانی کریں تو کہو، اے منکرو، گواہ رہنا، ہم مسلمان ہیں۔ شاہ مقوقس یہ مکتوب سنا اور اپنے کاتب کو حکم دیا، لکھو، محمد بن عبداللہ اسلام کے حضور من جانب مقوقس عظیم القبط میں نے آپ کا گرامی نامہ پڑھا اور جو کچھ اس میں تحریر تھا اور جو کہ آپ نے دعوت دی، میں نے سمجھا بلا شبہ میں جانتا ہوں ایک ایسا نبی باقی رہا ہے جو خاتم الانبیاء ہوگا۔ میرا خیال ہے اس کا ظہور ملک شام سے ہوگا اور میں نے آپ کے قاصد کی آمد کو گرامی جانا۔ میں آپ کی طرف ماریہ اور سیرین کو بھیجتا ہوں جو کہ قبط میں عظیم المرتبت ہیں، اور کچھ لباس و تحائف ایک اونٹ آپ کی سواری کے لیے پیش خدمت کرتا ہوں۔ وسلام۔ مقوقس۔ مستند روایات میں ملتا ہے کہ مقوقس نے ماریہ اور سیرین کو، جو کہ دونوں بہنیں تھیں، ان کے ساتھ ان کے ماموں زاد یا چچا زاد بھائی معبور کو بھیجا جو کہ ان دونوں بہنوں کی ضروریات کا خیال کرنے، ان کی مدد کرنے اور خدمت کرنے کے لیے تھا۔ دوران سفر ان تینوں افراد پر حضرت حاتب نے اسلام پیش کیا تو ماریہ اور سیرین نے اسلام قبول کر لیا جبکہ معبور نے انکار کر دیا، مگر مدینہ پہنچ کر کچھ عرصہ بعد حضرت معبور نے بھی اسلام قبول کیا اور صحابی رسول کا درجہ پایا۔ یہ وہی حضرت معبور ہیں کہ جن پر اہل یہود کے ایک گروہ نے حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تعلقات کی افواہیں پھیلائیں۔ یہ افواہیں اس انداز سے پھیلائی گئیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیرت میں آ کر امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو حکم دیا، معبور جہاں ملے جا کر قتل کر دو۔ چنانچہ حکم پاتے ہی امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر نکلے
तो देखा हज़रत मबूर एक कुएं में पाँव लटकाए हुए बैठे हैं। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने उनको वहाँ पहुँचते ही पकड़कर जो खींचा तो इसी कशमकश में उसका तहमद खुल गया और शर्मगाह वाज़े हो गई। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने देखा कि ये तो महबूब नामर्द यानी ख्वाजा सरा हैं और उनका सिरे से आला तनासुल ही नहीं है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने जब ये मंजर देखा तो हज़रत मबूर को कत्ल करने से हाथ खींच लिया और महसूस किया कि उस शख्स में तो वो इल्लत ही नहीं पाई जाती कि जिसकी बिना पर मुझे दरबार रिसालत से इसको कत्ल करने का हुक्म मिला था। बस आपने उन्हें छोड़ा और बारगाह नबी में हाजिर होकर तमाम वाक़या अर्ज़ कर दिया। इस मौका पर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाजिर वो कुछ देख सकता है जो गायब देख सकता हो। दोस्तों, हज़रत मबूर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अहले किताब सहाबी थे। आपका नाम मबूर जबकि उर्फ आम में आपको खसी कहकर पुकारा जाता था। खसी उस इंसान या चौपाए के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसके खुशियाँ निकाल दिए गए हों। इसके मुतबादिल अल्फाज में हिजड़ा, जनाना, मुखन्नस या ख्वाजा सरा वगैरह भी इस्तेमाल किए जाते हैं। हज़रत मबूर हज़रत मारिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बहुत ज़्यादा मानूस थे। आप हर वक्त उनकी खिदमत में लगे रहते, उनको लकड़ी और पानी वगैरह मुहैया करते, उनके दीगर कामों में उनकी मदद करते थे। तारीख़ में हज़रत मबूर का तज़किरा बहुत ज़्यादा नहीं मिलता क्योंकि आपको हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत में बहुत कम वक्त मैसर आया था। इलावा अज़ीं आपका ज़्यादातर वक्त हज़रत मारिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ ही गुज़रता था। जिस गांव में हज़रत मारिया की पैदाइश और परवरिश हुई उसका नाम शेख अबादा है। यह गांव सहाबी रसूल हज़रत अबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से मंसूब है। हज़रत मारिया कुब्तिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर और उनके नाम से एक मस्जिद की बाक़ियात के आसार भी अभी तक गांव में पाए जाते हैं। तो नौल जबल के इलाके में सियाहत की सरगर्मियों से मुतल्लिक़ दफ्तर के डायरेक्टर फ़र्ज अब्दुल अज़ीज़ का कहना है कि उस गांव का असल नाम बसा था जो फ़िरौनी ज़माने के एक मबूद का नाम है। उसके बाद यहाँ इब्न वाती के नाम से एक शहर बसाया गया। उस गांव में फ़िरौनी, रूमी, कुब्ती और इस्लामी आसारियात पाए जाते हैं। फ़र्ज के मुताबिक इस गांव के दीगर नाम भी पड़े जिनमें पोलीज़ और रूफन शामिल हैं। तारीख़ी ज़राए के मुताबिक सहाबी रसूल हज़रत उमरू बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मिस्र पहुँचकर उसको फ़तह किया। उस फ़ौज में हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी शामिल थे जिनकी क़यादत में एक दस्ते को बकिया इलाके को फ़तह करने के लिए रवाना किया गया। हज़रत उबादा जब मज़कूरा गांव पहुँचे तो उन्हें बताया गया कि ये वही इलाका है जहाँ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत मारिया कुब्तिया आई थी। हज़रत उबादा ने यहाँ ठहरने का फ़ैसला किया और जिस जगह हज़रत मारिया का घराना रहता था वहाँ एक मस्जिद बना दी जो उस इलाके में पहली मस्जिद थी। हज़रत उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस जगह को अपना मरकज़ी जाए क़याम बनाया जिसके बाद गाँव का नाम कुर्या शेख उबादा पड़ गया। अल-मोमिनीन हज़रत मारिया कुब्तिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की अज़वाजी हैसियत के मुतल्लिक़ बाद गैर मुहतात मुस्लिम मौरख़ीन ने नादानिस्ता और गैर मुस्लिम मौरख़ीन से दानिस्ता ये तासुर देने की कोशिश की है कि आप हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लौंडी और कनीज़ थी और आपकी हैसियत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी अज़वाज मुतहरात से कम तरतीब। तहक़ीक़ से मालूम होता है कि आपकी हैसियत एक कनीज़ की हरगिज़ न थी बल्कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे बाकायदा निकाह फरमाकर आपको अज़वाज मुतहरात में शामिल फरमाया था। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब शाहान अरब से अजम को इस्लाम की दावत दी तो कुब्ती कौम के अजीम रहनुमा मकूक़स वाली मिस्र को भी एक ख़त लिखा। मकूक़स ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त बहुत सगाली
के तौर पर खत के जवाब के साथ कुप्ती कौम की आले नस्ल की 2 लड़कियां भी तोहफन भिजवाईं। एक उनमें से हजरत मारिया थी, जिनको हजरत की ज़ौजियत का शर्फ हासिल हुआ। हजरत मारिया के वतन से हजूर के फर्जंद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जो कम सिनी में ही वफात पा गए। फिर चूँकि हजरत मारिया किसी जंग में असीर होकर नहीं आई थी, इसलिए उनकी आज़ाद हैसियत बरकरार थी और वह मुल्क यमीन करार नहीं पा सकती थी। ये कतई तौर पर साबित है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मारिया से शुरू से ही पर्दा करवाया, और ये अमर मुसलमा फ़िक़ही मसला है कि पर्दा सिर्फ आज़ाद औरत ही कर सकती है। फिर मक़ूक़स वाली मिस्र ने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकतूब ग्रामी के जवाब में लिखा था कि आपकी खिदमत में 2 लड़कियां भिजवा रहा हूँ, जिन्हें कुप्ती कौम में बड़ा दर्जा हासिल है। गोया उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीम के इज़हार के तौर पर इंतहाई आला ख़ानदान की लड़कियों का इंतखाब करके भिजवाया, ना कि ग़ुलामों की मार्केट से खरीद कर। हजरत मारिया कुब्तिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वतन से हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फर्जंद पैदा हुए, वो बड़े अज़ीमुल मर्तबत थे। उनकी वफ़ात पर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इब्राहीम ज़िंदा रहता तो एक सिद्दीक़ नबी होता। उस जलीलुल क़द्र बच्चा का नसब किसी तौर पर भी दागदार न होना सुन्नत इलाही के खिलाफ है। अंबिया हसबो नस्बन आला ख़ानदानों में पैदा होते हैं ताकि दुश्मन उन पर उस तौर का तान न कर सके। अरबी ज़बान में एक कनीज़ को बाला अक़द में लाने के लिए तज़ूज का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता। तज़ूज बाकायदा निकाह को कहते हैं, जो हमेशा आज़ाद औरत से होता है। हजरत सफ़िया के मुतल्लिक़ हदीस में आता है, यानी हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को आज़ाद करके आपसे बाकायदा शादी कर ली। इस किस्म के अल्फाज हजरत मारिया के मुतल्लिक़ भी आते हैं। चुनांचे ये भी लिखा है कि फिर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मारिया बिन्त शमून से बाकायदा शादी कर ली, जिसे सिकंदरिया के वाली मक़ूक़स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हदियतन भेजा था। इस मज़मून में बाज़ शुबहात का इज़ाला भी किया गया है। मसलन कुतुब आसार सैर में मज़कूर है कि जब हज़रत इब्राहीम पैदा हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मारिया को इसके बेटे ने आज़ाद कर दिया। इसी तरह हदीस बयान की जाती है कि जब किसी कनीज़ के यहाँ उसके मालिक से कोई बच्चा पैदा होता है तो वह अपने मालिक की वफ़ात के बाद आज़ाद हो जाती है। इन हर 2 रिवायात पर काज़ी इब्न रशीद कुर्तबी तनकीद करते हैं कि मज़कूरा दोनों अहादीस मुहद्दिसीन के नज़दीक साबित नहीं। बाद मौरख़ीन को लफ्ज़ जारिया से ये धोखा लगा है कि यह लफ्ज़ सिर्फ लौंडियों के लिए इस्तेमाल होता है। ये बात सही नहीं है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने मुतल्लिक़ वाक़या के ज़िक्र में जारिया का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाती हैं। बाद मुसलमान मौरख़ीन को मारिया नाम से भी गलत फहमी हुई है, क्योंकि हज़रत मारिया कुब्तिया के अलावा मारिया नाम की 2 ख़ादमाएँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत गुजारी में रहती थीं। एक मारिया जो जारिया नबी कहलाती थी, इनकी कुनियत उम्मे रुबाब थी, और दूसरी ख़ादमतुन नबी कहलाती थी। ये मसनी बिन सालिहीन मेहरान उमरो बिन हरीस की दादी थी। इन दोनों ख़ादमाओं के हज़रत मारिया के हमनाम होने की वजह से वाक़यात में अल्तबास पैदा हो गया है। दूसरा ख़त नजाशी शाह हबशा के नाम था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हबशा एक सरसब्ज़ व शादाब और खुशहाल मुल्क था। यहाँ का हुक्मरान और यहाँ के अवाम माली लिहाज से भी खुशहाल थे, और अमन व अमान की सूरत हाल भी दीगर मुल्कों की बनिस्बत बहुत बेहतर थी। हबशा का हुक्मरान आदिल और नेक दिल था, इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के 5वें साल अपने सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को हुक्म दिया कि वो मक्का को छोड़कर हबशा की जानिब हिजरत कर जाएं। चुनांचे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने मक्का से हिजरत की और बुहैरा
अहमर को अबूर करते हुए अबशा की बंदरगाह मुसवदा मसूह पर जा उतरे। वहाँ से 200 किलोमीटर जुनूब की तरफ दारुल हुकूमत अक्सूम था। सहाबा करम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने इस शहर में रिहाइश अख्तियार कर ली और निहायत अमन के साथ यहाँ वक्त गुजारा। ये अरसा तकरीबन 15 सालों पर मुरीद था। बादशाह अबशा ने दरबार में हज़रत जाफर की मार्का आरा तकरीर भी सीरत की किताबों में है और शाह अबशा का सूरह मरियम की आयत सुनकर दिक्कत से आबदीदा हो जाना भी हमारी तारीख में महफूज है। इस बादशाह का नाम असमा बिन अबजर था और नजाशी इसका लक़ब था। जिस तरह रूम और ईरान के हुक्मरान कैसर और कसरा कहलाते थे, अफ्रीकी ज़बान में नजाशी का तलफ़्फ़ुज़ नजूस है और इसका मानी है बादशाह। नजाशी के नाम हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त लिखा और आपके सहाबी हज़रत उमर बिन उमैया ने इस तक पहुँचाया। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख़त में बादशाह अबशा को भी इस तरह इस्लाम की दावत दी जिस तरह दूसरे मुल्क अमरा को दी थी। नजाशी ने आपका ख़त वसूल करते ही उसे अपनी आंखों से लगाया और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का ऐलान कर दिया। इमाम इब्न क़य्यिम ने ज़ादुल मिआद में बयान किया है कि नजाशी ने उस मौका पर भरे दरबार में कबूल इस्लाम के बाद जो खिताब फरमाया, इसमें हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। उसकी गुफ्तगू का खुलासा यह है कि गवाही देता हूँ और कसम खाता हूँ कि आप ही वही नबी हैं जिनका अहले किताब इंतज़ार कर रहे हैं। और जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने राकिबुल हमल गधे के सवार से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बिशारत दी है, इसी तरह राकिबुल जमल यानी ऊँट सवार से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशखबरी दी है। और मुझे आपकी रिसालत का इस दर्जा यकीन है कि ऐनी मुशाहदे के बाद भी मेरे इस यकीन में कोई इजाफा न होगा। मौरखीन ने यह भी बयान किया है कि नजाशी ने कबूल इस्लाम के बाद हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जवाबी ख़त लिखा और अपने कबूल इस्लाम की इतला देने के साथ ये भी लिखा कि अगर आप फरमाएं तो मैं खुद आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। नजाशी का ख़त लेकर उसका बेटा और वली अहद 60 आदमियों के हमरा बदरिया कश्ती हिजाज की तरफ से रवाना हुआ, मगर बदकिस्मती से ये कश्ती समंदर में डूब गई और उसमें सवार लोग जाँ बहक हो गए। बहरहाल हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नजाशी के कबूल इस्लाम की इतला मिल गई और आपने उसको अपने मुल्क पर अदल और इंसाफ के साथ हुक्मरानी जारी रखने की तलकीन फरमाई। सही बुखारी किताब अल जनाइज़ में ये हदीस दर्ज है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजाशी की वफ़ात पर सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को इस वाक़या की इतला दी और अपने इस सच्चे और वफ़ादार उम्मती की गायबाना नमाज जनाज़ा पढ़ाई। नजाशी का इंतकाल रजब सन 9 हिजरी में हुआ। हकीकत में तो नजाशी हज़रत जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके साथियों की दावत और तबलीग के नतीजे ही में मुसलमान हो चुका था, मगर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त मिलते ही उसने बावकार तौर पर कबूल इस्लाम का ऐलान किया। वक्त के तमाम बादशाहों और हुक्मरानों में यह शख्स सबसे ज़्यादा खुश नसीब था। मिस्र के हुक्मरान का नाम मकूकस था। उसके नाम भी हज़ूर ने ख़त लिखा जो हज़रत हातिब बिन अबी बल्ता उसके पास लेकर गए। मकूकस ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त पढ़कर पूछा कि क्या ये नबी नहीं? हज़रत हातिब ने जवाब दिया, क्यों नहीं, आप अल्लाह ताला के नबी और रसूल हैं। मकूकस कहने लगा, तो फिर क्या वजह है कि जब उन्हें उनकी कौम ने उनके घर से निकाला तो उन्होंने बदुआ ना की? हज़रत हातिब ने फरमाया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आप क्या कहते हैं? क्या वो नबी नहीं थे? तो फिर जब उनकी कौम ने उनको सूली पर लटकाने का इरादा किया तो उन्होंने बदुआ क्यों ना की कि हत्ता के अल्लाह ताला को उन्हें उठाना पड़ा। मकूकस कहने लगा, बहुत खूब, तुम एक दाना शख्स हो जो किसी दाना शख्स के पास से आए हो। उसके बाद मकूकस ने हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासिद को बहुत इज़्ज़त और एहतराम के साथ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम अपना पैगाम दिया जिसमें आपकी भरपूर तारीफ़ थी। उसने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत से तोहफ़े भी भेजे। मकूकस ने तोहफ़े के तौर पर हज़रत मारिया कुब्तिया
اور حضرت شیرین جو خوبصورت مصری لڑکیاں تھیں بھی مدینہ بھجوائیں۔ حضرت ماریہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم میں داخل ہوئیں۔ انہیں کے بطن سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تھے۔ تو آج کی اسلامک ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔